Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Modern English of Class 7th, Unit number 4, Part A. The Carew Murder Case. This story is about a crime scene and investigation. Let's start reading. Nearly a year later, तकरीबन एक साल पहले, in the month of October, अक्टूबर के महीने में, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. लंदन में दहशत का बसेरा था जिसने बहुत बड़े बड़े शिकारियों को परेशान कर रखा था. The details were few and startling. तफसीलात चंद और चौंका देने वाली थी. A maid servant living alone in a house not far from the river. एक मुलाजमा जो कि दरिया से कुछ ही दूर एक घर में अकेली रहती थी, had gone upstairs to bed about 11. तकरीबन 11 बजे सोने के लिए ऊपर गई. Although a fog rolled over the city in a small hours, अगरचे कुछ घंटों में धुंध ने शहर को घेर लिया था, the early part of the night was cloudless. रात का इब्तदाई हिस्सा साफ था, and the lane और गली with the maid's window overlooked, वो गली जो कि मुलाजमा की खिड़की से दिखाई देती थी, was brilliantly lit by the full moon. पूरे चांद की रोशनी में चमक रही थी. It seems, ऐसा मालूम होता था, she was fanciful, जैसे वो ख्याली दुनिया में थी, for she sat down upon her box, और वो डिब्बे के ऊपर बैठी हुई थी, which stood immediately under the window and fell into a dream of musing. अपने ख्यालों में गुम थी. अचानक वो खड़ी हुई और ख्वाबों में खो गई. Never, कभी भी नहीं, she used to say with streaming tears when she narrated that experience. जब इसने तजर्बा किया, इसके बाद वो अक्सर बहते आंसुओं के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, never. Never had she felt more at peace with all men or thought more kindly of the world. उसने पहले कभी भी तमाम मर्दों के साथ अमन महसूस नहीं किया था. As she so sat, she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair. दुनिया के साथ रहमदिली का सोचा था, और जब वो बैठी वो आगाह हुई जब बड़ी उम्र का सफ़ेद बालों वाला आदमी गली में बैठा तस्वीर बना रहा था. ड्राइंग नियर अलोंग द लेन, गली के नज़दीक ड्राइंग कर रहा था. एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन. इससे पहले इससे मिलने एक छोटा आदमी आया था जिसे इसने पहले कम तवज्जो दी थी. टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, इससे पहले उसने उसको कम तवज्जो दी थी. When they had come within speech, which was just under the maid's eyes, the older man bowed and accosted the other with a very pretty manner of politeness. जब उन्होंने बात शुरू की, जो कि नौकरानी की नज़र में थी, बूढ़ा आदमी झुका और बहुत ही खूबसूरत और नर्म अंदाज में दूसरे से मुखातब हुआ. It did not seem as if the subject of his address were of great importance. ऐसा मालूम होता था कि छोटे शख्स को कोई पता नहीं मालूम जो इसके लिए अहम है. Indeed, from his pointing it sometimes appeared as if he was only inquiring his way. दर हकीकत इसके इशारे से ऐसा ज़ाहिर होता था कि वो रास्ते के बारे में मालूमात ले रहा है. But the moon shone on his face as he spoke. लेकिन जब वो बोलता तो चांद की रोशनी उसके फेस पर पड़ रही थी. And the girl was pleased to watch it. और लड़की को उसे देखकर अच्छा लग रहा था. It seemed so innocent and full of kindness. ऐसा लगता था वो मासूम और रहम दिल है.
Presently her eye wandered to the other. यकदम उसकी नज़र दूसरे पर पड़ी. And she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde. और वो इसे पहचान कर हैरान हुई कि वो मिस्टर हाइड है. Who had once visited her master and for whom she had conceived a dislike. एक बार इसके मालिक की तरफ गया था और जिसने इसे नापसंद किया था. He had in his hand a heavy cane with which he was fiddling. इसके हाथ में एक भारी छड़ी थी जिससे वो सारंगी बजा रहा था. But he answered never a word. लेकिन इसने कभी भी एक लफ्ज़ का जवाब नहीं दिया. And seemed to listen with an ill-contained impatience. और ऐसा लग रहा था कि वो इसे बददिली के साथ सुन रहा है. And then all of a sudden he broke out in a great flame of anger. और फिर अचानक से वो गुस्से से फट पड़ा. Stamping with his foot. अपने पाँव पटकते हुए. Brandishing the can and carrying on as the maid described it like a madman. छड़ी को घुमाते हुए और एक पागल आदमी की तरह चिल्लाते हुए. The old gentleman took a step back. बूढ़े आदमी ने एक कदम पीछे किया. With the air of one very much surprised and a trifle hurt, and at that Mr. Hyde broke out of all bounds and clubbed him to the earth. वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और थोड़ा ज़ख्मी भी, और इस वक्त मिस्टर हाइड ने तमाम हदूद को तोड़ते हुए ज़मीन पर उसे गिरा दिया. And next moment, with ape-like fury, he hailed down a storm of blows. और अगले लम्हे वो गुरीले के जैसा गुस्सा कर रहा था जैसे कि तूफ़ान आ गया हो. At the horror of these sights and sounds the maid fainted. और इन खौफनाक मनाज़र और आवाज़ों की वजह से मुलाज़मा बेहोश हो गई. It was 2 o'clock. 2 बजे का टाइम था. When she came to herself, जब वो होश में आई, and called for the police, और पुलिस को कॉल की. The criminal was gone long ago. क्रिमिनल काफ़ी देर पहले जा चुका था. But there lay his victim in the middle of the lane, incredibly beaten up. गली के दरमियान में इसका शिकार बुरी तरह ज़ख्मी पड़ा था. The stick was which the deed has been done, although it was of some rare and very tough and heavy wood, had broken in the middle and one splintered half had rolled in the neighboring gutter. वो छड़ी जिसके साथ ये अमल हुआ था बेशक वो बहुत सख्त और भारी थी. वो दरमियान से टूट चुकी थी और उसका आधा टूटा टुकड़ा लड़कता हुआ हमसाए के गटर में था. The other without doubt had been carried away by the killer. और दूसरा हिस्सा बगैर किसी शक के कातिल के पास था. A purse and a gold watch were found upon the victim. एक बटुआ और सोने की घड़ी शिकार के पास मौजूद थी. But no cards or papers except a sealed and stamped envelope. लेकिन कोई कार्ड और कागजात नहीं थे सिवाय एक बंद मोहर शुदा लिफाफे के. Which he had been probably carrying to the post and which bore the name and address of Mr. Utterson. जिसे वो शायद पोस्ट करने के लिए जा रहा था और जिस पर मिस्टर अटरसन का नाम और पता दर्ज था. This was brought to the lawyer the next morning. ये अगली सुबह वकील लाया था. Before he was out of bed. इनके बिस्तर से उठने से पहले. And he had no sooner seen it. और उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था. And been told the circumstances, then he shot out a solemn lip. और सारे हालात बताए और वो संजीदगी के साथ बोले. I shall say nothing till I have seen the body.
वो संजीदगी के साथ बोले कि मैं लाश जब तक नहीं देख लूँगा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिस मे बी वेरी सीरियस। उसने कहा ये बहुत संजीदा मामला है। हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस। मेहरबानी करके थोड़ा इंतज़ार करें जब तक मैं तैयार हो लूँ। एंड विद द सेम ग्रेव फेस he hurried through his breakfast and drove to the police station. और इसी संजीदा चेहरे के साथ जल्दी से नाश्ता किया और पुलिस स्टेशन पहुँचे। Whither the body had been carried. जब लाश लाई जा रही थी, as soon as he came into the cell he nodded. जैसे ही वो जेल में आए उन्होंने सर हिलाया। Yes, said he. उन्होंने कहा हाँ। I recognize him. मैंने इसे पहचान लिया है। I'm sorry to say that this is Sir Danvers Carew. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मिस्टर डैनवर्स कैरियो है। गुड ग्रीफ सर, एक्सक्लेम्ड द ऑफिसर। सर बहुत अफसोस हुआ, ऑफिसर ने कहा। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? एंड द नेक्स्ट मोमेंट हिज आई लाइटेड अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन। और अगले ही लम्हे इसकी आंखें एक पेशावर मकसद के तहत चमकी। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइस, ही सेड। हमें एक मंसूबा बनाना होगा, उसने कहा। एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन। और शायद आप इस आदमी तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हेन व्हाट द मेड हैड सीन एंड शोड द ब्रोकन स्टिक। और इसने वज़ाहत से बयान किया वो सब कुछ जो मुलाजमा ने देखा था और टूटी हुई छड़ी दिखाई। मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ मिस्टर हाइड। मिस्टर अटरसन हाइड के नाम पर कांप गए थे। बट लेकिन when the stick was laid before him, लेकिन जब इसके सामने छड़ी रखी गई, he could doubt no longer, उन्होंने इसे पहचान लिया कि ये वही है, कोई शक नहीं रहा। broken and battered as it was, क्योंकि वो मार कर तोड़ी गई थी। he recognized it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll। उन्होंने इसे पहचान लिया कि ये वही थी जो उन्होंने खुद कई साल पहले हेनरी जैकल को पेश की थी। इज़ दिस मिस्टर हाइड ए पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, ही इंक्वायर्ड। क्या मिस्टर हाइड छोटे कद के इंसान हैं? इसने दरियाफ्त किया। पार्टिकुलरली स्मॉल एंड पार्टिकुलरली विकेट लुकिंग इज़ व्हाट द मेड कॉल्स हिम, सेड द ऑफिसर। तकरीबन छोटा और तकरीबन भदा दिखने वाला, जैसा कि मुलाजमा ने कहा, ऑफिसर ने बताया। मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हेड, मिस्टर अटरसन मुड़े और फिर सर ऊपर उठाया। इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरे साथ मेरी टैक्सी में चलते हैं। ही सेड आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में आपको उसके घर ले जा सकता हूँ। It was by this time about 9 in the morning, सुबह के तकरीबन 9 बजे का वक्त था। And the first fog of the season hung in the streets, और मौसम की पहली धुंध गलियों में आ चुकी थी। The cab rolled slowly through the dark, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इन तारीक और भयानक गलियों में चल रही थी। एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी, और मिस्टर अटरसन उदासी महसूस कर रहे थे। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, जैसे ही गाड़ी ने इन्हें बताए हुए पते पर उतारा, द फोग लिफ्टेड ए लिटल एंड शोड हिम ए डिंगी स्ट्रीट। धुंध थोड़ी ऊपर उठी थी जिसने उन्हें दिखाई एक तारीक गली। एंड ग्रबी ईटिंग हाउस, और एक गंदा होटल। ए फ्यू शॉप्स सेलिंग चीप गुड्स,
और कुछ दुकानें जहाँ सस्ती चीज़ें बिक रही थी। मैनी रैग चिल्ड्रन हडल्ड इन द डोरवेज, और बहुत से गंदे बच्चे रास्ते में जगमट्टा बनाकर खड़े थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और मुख्तलिफ कौमियत रखने वाले लोग गुजर रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फोक सेटल डाउन अगेन अपॉन दैट पाथ, और अगले लम्हे इस हिस्से में धुंध छा गई। एज ब्राउन एज अम्बर, इतनी भूरी जैसे कि धात। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग्स, और इन्हें इर्द गिर्द से अलग कर दिया। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट, ये हेनरी जैकल का पसंदीदा घर था। ऑफ ए मैन हु वॉज हेयर टू ए $250,000 स्टर्लिंग, वो शख्स जो लाखों के चौथाई हिस्से का मालिक था। An ivory-faced and silvery-haired old woman opened the door. सफ़ेद रंग और सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। She had an evil face. इसका चेहरा खौफनाक था। Smoothed by hypocrisy, जिसके चेहरे से ही मुनाफ़िक़त छलक रही थी। But her manners were excellent. लेकिन उसकी आदत बेहतरीन थी। Yes, she said. उसने कहा, हाँ, this was Mr. Hyde. ये मिस्टर हाइड का घर है। But he was not at home. लेकिन वो घर पर नहीं थे। He had been in that night very late. वो इस रात बहुत देर से आए थे। But had gone away again in less than an hour. लेकिन वापस चले गए 1 घंटे से पहले। There was nothing strange in that. इसमें कोई अजीब बात नहीं है। His habits were very irregular. उनकी आदत बहुत बेकायदा थी। And he was often absent. वो अक्सर गैर हाज़िर होते थे। For instance, मिसाल के तौर पर, it was nearly 2 months since she had seen him till yesterday. मिसाल के तौर पर कल से 2 महीने पहले उसने उन्हें देखा था। Very well, बहुत बेहतर। Then we wish to see his rooms. हम उनके कमरे देखना चाहेंगे। Said the lawyer, वकील ने कहा। And when the woman began to declare it was impossible, और जब औरत ने बोलना शुरू किया कि ये नामुमकिन है। I had better tell you who this person is, he added. बेहतर है मैं आपको बताऊं कि ये शख्स कौन था। This is Inspector Newcomen of Scotland Yard. उन्होंने अपनी बात में इजाफ़ा किया कि ये इंस्पेक्टर न्यूकॉमन है स्कॉटलैंड यार्ड से। A flash of odious joy appeared upon the woman's face. औरत के चेहरे पर नागवारी की एक झलक दिखी। said she, उसने कहा, he is in trouble. वो मुश्किल में है। What he has done, उसने क्या किया है। Mr. Utterson and the inspector changed glances. Mr. Utterson और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। He doesn't seem a very popular character. वो कोई मशहूर आदमी मालूम नहीं होता था। Observed the inspector. इंस्पेक्टर ने जायज़ा लगाया। And now just let us in. और अब हमें अंदर आने दीजिए। In the whole extent of the house, which but for the old woman remained otherwise empty. तकरीबन पूरा घर उस बूढ़ी औरत के अलावा खाली था। Mr. Hyde had only used a couple of rooms. Mr. Hyde सिर्फ 2 कमरे इस्तेमाल करते थे। But these were furnished with luxury and good taste. लेकिन वो दोनों कमरे बेहतरीन और महंगे सामान से आरास्ता थे। But a cupboard was filled with food and drinks. एक अलमारी खाने पीने की चीज़ों से भरी हुई थी। The table was set with silver cutlery and fine china. और मेज़ पर चांदी और चीनी के बर्तन मौजूद थे। Artwork hung upon the walls. दीवारों पर तस्वीरें लटक रही थीं। A gift as Utterson supposed from Henry Jekyll. हेनरी जैकल की तरफ से गिफ्ट, जिसे मिस्टर अटरसन ने अंदाज़ा लगाया।
who was much of a connoisseur, जो इससे कुछ हद तक वाकिफ़ थे, and the carpets were thick and expensive looking. कारपेट मोटे और महंगे दिखाई दे रहे थे. At this moment, however, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. इस लम्हे तमाम कमरे की हर चीज़ निशानदेही कर रही थी कि वहाँ से जाने वाला बहुत जल्दी में भागा था. Clothes lay about the floor. कपड़े फर्श पर पड़े थे. With their jackets inside out, जिनकी जेबें बाहर की तरफ निकली हुई थी. Drawers stood open. दराज खुले हुए थे. And on the hearth there lay a pile of grey ashes, as though many papers had been burned. और आतशदान के ऊपर राख का एक ढेर था, जैसे कि बहुत से सफ़ों को जलाया गया है. From these embers the inspector disinterred the stub of a green checkbook which had resisted the action of the fire. The other half of the stick was found behind the door. इस राख में से इंस्पेक्टर को सब्ज़ चेकबुक का एक टुकड़ा मिला जिसे आग नहीं जला सकी थी. छड़ी का दूसरा हिस्सा दरवाजे के पीछे से मिला. And as this clinched his suspicions, और जैसे ही इसका शक ख़त्म हुआ, the officer declared himself delighted. ऑफिसर ने खुद को खुश पाया. A visit to the bank. बैंक में एक विजिट. Where several thousand pounds were found to be laying to the murderer's credit completed his gratification. जिसने वो सेटिस्फाई किया जहाँ पर कातिल के पास हज़ारों पाउंड होने का पता चला, जिससे वो सेटिस्फाई हो गया. You may depend upon it, sir, he told Mr. Utterson. आप इस पर इन्हिसार करते हैं सर, इसने मिस्टर अटरसन को बताया. I have him in my hand. वो मेरे हाथ में है. He must have lost his head. और he never would have left the stick or above all burned the checkbook. इसका दिमाग ख़राब हो गया है, वरना वो ना तो छड़ी को यहाँ छोड़ता और ना ही चेकबुक जलाता. He'll need money to live. उसे रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी. We have nothing to do but wait for him at the bank. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बैंक के बाहर इंतज़ार करना है. And get out the wanted posters. और wanted के पोस्टर्स हटाने हैं. This, however, was not so easy to accomplish. ताहम ये करना ज़्यादा आसान नहीं था. For few people knew Mr. Hyde. कुछ लोग मिस्टर हाइड को जानते थे. Even the master of the servant maid had only seen him twice. यहाँ तक कि मुलाजमा के मालिक ने भी इसे सिर्फ 2 बार देखा था. His family could nowhere be traced. इसके ख़ानदान का कुछ पता नहीं था. He had never been photographed. उसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी. And the few who could describe him different widely, और कुछ जिन्होंने इसके बारे में बताया था वो बहुत मुख्तलिफ था. As common observers will, जैसे कि आम मुशाहिदात में होता है. Only on one point were they agreed, and that was the haunting sense of strangeness with which he left people. जैसे कि आम मुशाहिदात में होता है, सिर्फ एक नुक्ता था जिस पर उन्होंने इत्फाक किया था, और अजनबी वो ये था कि उसने अजनबियत का वो एहसास था जो लोगों पे वो छोड़ कर गया था.